اب حملہ آور واضح طور پر دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ واقعی ایک ریوڑ کی شکل میں ہماری طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ فی الوقت تو ہمارے سامنے 15-20 کا ایک جتھا نمودار ہوا تھا۔ اس کے علاوہ تعداد میں وہ لوگ کتنے تھے اس کا صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اور پھر جیسے ہی وہ ہماری رینج میں آئے، اچانک خلاف توقع میرا شیر دھاڑتا ہوا اپنی کچھار سے نکلا اور اس کی آٹومیٹک گن کی لمبی سرخ زبان شعلے اگلنے لگی۔ میں نے بھی کسی معمول کی طرح برقی عمل کے تحت 3 ہینڈ گرنیڈ وقفے سے ان کی طرف لڑکا دیے۔ تینوں بر وقت ان کے سروں پر پھٹے اور ایک ایک کر کے وہ بے بس کتوں کی طرح مرنے لگے۔ گرنیڈ ختم ہوتے ہی میں نے گن سنبھال لی تھی۔ جب اس جتھے کا سفایا ہو چکا تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹا، جس کی ہلکی سی کرا میں نے ابھی سنی تھی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کلیجے میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ اس کے سینے میں 5 نمایاں سوراخ دکھائی دے رہے تھے، جس سے بہتے خون نے اس کی وردی رنگین کر دی تھی۔ اصل میں جوش غضب سے اس شیر دل لیفٹیننٹ نے اٹھ کر دشمن پر چارج کیا تھا، جو جنگی حکمت عملی کے بالکل خلاف بات تھی، اور کسی مرتے ہوئے مکتی باہنی کی اسٹین گن کا پورا برسٹ اس کے سینے کو چھلنی کر گیا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر زمین پر لٹا دیا اور چاہا کہ اس کی فیلڈ پٹی کھول کر زخموں پر پھاہا رکھوں، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور پانی مانگا۔ اپنی بوتل میں نے اس کے منہ سے لگائی، بمشکل 2 گھونٹ پانی ہی اس کے حلق میں گیا تھا۔ اس کے بعد پانی باہر آنے لگا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب اس کا دم آخر ہے۔ مر جانا آسان ہے مرتے ہوئے انسانوں کو دیکھنے سے۔ خود آپ موت کی اذیت ناکیاں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے عزیز آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہے ہوں تو یہ بات ممکن نہیں رہتی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت سے اس دم میں دوچار تھا۔ مضطرب نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ مجھے تشفی دے رہا تھا۔ یہ مر جانے کی ادا بڑی نرالی ہوتی ہے، مار ڈالتی ہے یہ دوسروں کو۔ آنکھوں کے اشارے سے اس نے مجھے جھک جانے کو کہا۔ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا، میں برقی عمل کے تابع جھک گیا۔ ادھر میری یونٹ کے لوگوں کو سلام کہنا، مجھے افسوس ہے ہم اپنے مہمان کی حفاظت نہ کر سکے۔ اگر ممکن ہو تو میری ماں کو پشاور خط لکھ کر بتانا کہ اس کے بیٹے نے اس کے دودھ کی لاج رکھی ہے، سینے پر گولیاں کھائی ہیں، پیٹھ نہیں موڑی۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کے متعلق کچھ ہدایات دینے لگا۔ اس کا چہرہ پرنور تھا، پرسکون طمانینت کا ایک سمندر وہاں لہریں مار رہا تھا۔ وہ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے کسی سفر پر جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو ہدایات دے رہا ہوں۔ میں پتھر کا بت بنا اس پر ٹکٹکی جمائے گھٹنوں کے بل جھکا بیٹھا تھا۔ اس کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ آنکھوں کی گرفت میرے ہاتھ پر کبھی ڈھیلی پڑتی، کبھی سخت ہو جاتی۔ سنگی فی امان اللہ، یہ آخری فقرہ تھا جو اس نے مجھ سے کہا۔ پھر وہ قرآنی آیات کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ بڑبڑاہٹ میں تبدیل ہو رہی تھی، نبض ڈوب رہی تھی۔ مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے الگ کیا اور آرام سے اس کے مقدس پہلوؤں میں لٹا دیے۔ غازی مرد کی آنکھیں موند چلی تھیں۔ آخری مرتبہ اس نے آنکھیں کھول کر میری سمت دیکھا، مسکرایا، ہچکی لی اور اس کی مسکراہٹ امر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا، ایسے بڑے نظارے کیے تھے، لیکن اس لمحے ضبط نہ سکا۔ اس جوان مرد کی آخری ادا نے مجھے رلا دیا۔ میں سسکیاں لے کر رو دیا۔ دل کا خون آنکھوں کے راستے باہر آنے لگا۔ اس لمحے نہ جانے کیوں میرا جی بے اختیار رونے کو چاہا تھا۔ شاید وہ غبار چھٹ رہا تھا جس نے اندر ہی اندر اب جگڑ کی صورت اختیار کر لی تھی، لیکن رونا بھی تو شان مردانگی نہیں۔ اس سوچ کے غالب آتے ہی میں نے اس کے پپوٹے کانپتے ہاتھوں کی انگلیوں سے بند کیے، جھک کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، قمیض کی آستین سے اپنے آنسو پونجے، اس کی گن دوبارہ لوڈ کی اور اس کے قریب سے ہٹ کر ایک جگہ پوزیشن لے لی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں بجائے نوحہ نہ ہونے کے جان بچانے کی فکر کرتا اور اپنی راہ ناپتا، لیکن ایسے غازی مرد کی لاش کو اکیلا چھوڑنا میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ ابھی بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے مکتی باہنی کے چیخنے، چلانے اور گالیاں بکنے کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگیں۔ اب میری باری تھی۔ اس لمحے انتقام کی آگ نے مجھے شعلہ و جوالا بنا کر رکھ دیا۔ میری ساری توانائیاں، پھرتیاں، چستی، چالاکی میرے وجود میں سمٹ آئیں۔ بقایا ہینڈ گرنیڈز تھام کر میں وہاں سے تیز رفتار سانپ کی طرح رینگتا ہوا دونوں اطراف میں گھوم گیا اور واپس آ گیا۔ میرے دائیں مورچے میں G3 فائرنگ کی پوزیشن میں تیار دھری تھی۔ بائیں ہاتھ سٹین گن اور ہاتھوں میں گرنیڈ میری حصے سماعت پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ ان کے بےہودہ نعروں کی آوازوں نے ایک واضح سمت اختیار کر لی تھی۔ میں نے پنجوں کے بل اسی سمت کا رخ کیا۔ سامنے سے کف اڑاتے بلوائیوں کا جتھا فصلوں کو رونتا اس طرف بڑھتا چلا رہا تھا۔
मैंने उनके रेंज में आते ही हैंड ग्रेनेड उछाला जो उनके ऐन दरमियान फटा। इसके साथ ही मैं जुस्त लगाकर दूसरी तरफ कूद गया। इस तरफ उन्होंने पसपाई इख्तियार की थी। दूसरे ही लम्हे दूसरा ग्रेनेड इन पर क़यामत ढा गया। वो चीखते चिल्लाते यहाँ ढेर होने लगे। मैंने उनके मरने का नज़ारा नहीं किया और इसी पोजीशन में G3 के नज़दीक पहुँच गया। शिकार अब उसी रुख पर आ रहा था। राइफल ने उन्हें चाटना शुरू कर दिया। गोलियां ख़त्म होते ही मैंने उससे निजात हासिल की और अपनी स्टेन गन उठाकर मुखालिफ सिमत का रुख किया। बात ये नहीं थी कि मैं कोई छलावा था जो उन्हें नज़र नहीं आ रहा था या उन्होंने जवाबी फायरिंग नहीं की थी। उन्होंने मुझ पर गोलियों का मी बरसा दिया था। कुछ रॉकेट भी मेरे दूरों नज़दीक फट रहे थे, लेकिन ये मेरी तरबियत का सदका था कि मैंने इतनी तेज़ी से पैंतरे बदल बदल कर फायरिंग की थी कि वो लोग मेरी सही पोजीशन का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते थे। इसके अलावा इनके जहन में ये बात भी आ गई थी कि मुकाबले पर मैं अकेला नहीं, बहुत से लोग हैं, क्योंकि उन पर दो मुख्तलिफ गन्नों की फायरिंग हुई थी और दो मुख्तलिफ पोजीशनों से इन पर ग्रेनेड फटे थे। अगर वो हिम्मत करते तो चार्ज करके मुझे भी मेरे साथियों का हमनिवाला बना सकते थे, लेकिन वो कोई ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी तो थे नहीं जिनके सामने रुतबा शहादत पर फायज होने के लिए कोई वाज़े मकासद मौजूद थे, और ना ही उन लोगों में इतना हौसला था कि वो जवां मर्दी इनफरादी शुजात का मुजाहिरा करते। मुझे अपने पास मौजूदा राउंड की कमी का बखूबी एहसास था, इसीलिए अब मैं रुक रुक कर और जगह बदल बदल कर फायरिंग कर रहा था। मेरी हत्तीउल वसा कोशिश यही थी कि मेरी कोई गोली ज़ाया न जाए, और मैं किसी हद तक कामयाब भी रहा। हमलावर गैर मुनज़्ज़म ज़रूर थे, लेकिन बेवकूफ़ इतने ज़्यादा भी नहीं थे जितना मैंने अंदाज़ा लगाया था। जल्द ही वो ज़मीन पर लेट कर फायरिंग करने लगे और मेरे गिर्द गिर्द घेरा डाल लिया। उनका एक कमांडर चिल्ला चिल्ला कर और गालियां दे दे कर उन्हें मुनज़्ज़म कर रहा था। उसी ने उन्हें एक नीम दायरे की शक्ल में ज़मीन पर लिटा दिया था। मैं मुहासरे की हालत में कब तक लड़ सकता था। बिलाखिर गोलियां ख़त्म हो जाती और मैं उन मूजियों के हत्थे चढ़ जाता। वहाँ गिरफ्तारी का तसव्वुर तो सिरे से था ही नहीं। वो किसी मुल्क की बाकायदा फौज नहीं थे, ना ही ऐसे मुहज़्ज़ब लोग थे कि वो मैं उन्हें जेनवा कमीशन के रूल्स पढ़ाने शुरू कर देता। मुझे इल्म था कि मेरे काबू में आते ही वो मेरी तिक्का बोटी कर डालेंगे। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि जिंदा इन लोगों के हाथ आने से किसी की गोली से शहादत पा जाऊं, और जब आदमी इस हद से आगे बढ़ जाए तो वो मारवाई मखलूक बन जाता है। ये कारनामे जो अंजाम पाते हैं, इनका सबब शायद जवानों का हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ मोराल ही होता है, वरना ज़िंदगी किसे प्यारी नहीं। और वो लोग जो किसी आंसा से मोहब्बत करते हों, उन्हें तो ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। इस लम्हे मेरे पास सिर्फ एक लोड मैगजीन और चंद फालतू राउंड्स बाकी रह गए थे जब पर्दा गैब से एक अजीब मौजज़े ने ज़हूर पाया। मेरे अकब से आसमान ने चिंगारना शुरू किया, और जब बेख्तियार गर्दन मोड़कर मैंने इस सिमत देखा तो एहसास तशक्कुर से दिल भर आया। ये आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर था। ऐसे हेलीकॉप्टर अमूमन जख्मी या पैगामात एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मौजूदा संगीन हालात के पेश नज़र ऐसे हेलीकॉप्टर में गन्स नस्ब कर दी गई थी, और ये एक तरह से रिसीव ऑपरेशन भी अंजाम देते थे। पायलट ने शायद दूर ही से ये हंगामा देख लिया था। इसने फौरन पीछे पैगाम भेजा और वापस जाकर मदद बुलाने के बजाय पैगाम भेजने पर इक्तफा किया और खुद मेरी अमली मदद को आ गया, जिसका अंदाज़ा मैंने इस तरह लगाया कि अब हेलीकॉप्टर ऊंचा उठकर गोलियों की रेंज से बाहर निकल गया था। घेरे में आए हुए साथी को बचाने के लिए यह इंतहाई दलेराना इकदाम था, क्योंकि इस तरह गनशिप हेलीकॉप्टर का मैदान जंग में कूद जाना बड़ा अजीब सा दिखाई देता था। मैंने भी इंतहाई खतरा मोल लेते हुए आसमान की रुख मखसूस अंदाज में फायर करते हुए उसे अपनी पोजीशन से आगाह कर दिया, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा राब्ते का और कोई जरिया मुयस्सर नहीं था। इसके साथ ही अगर तेजी से छलांग लगाकर पोजीशन न बदलता तो हमलावरों की गोलियां मुझे हड़प कर जाती। पायलट ने हेलीकॉप्टर के डिपर रोशन करते हुए मुझे कॉशन दिया। इसने मेरा पैगाम वसूल कर लिया है। इसके साथ ही इसने अपने पहलू पर झुकते हुए यकदम नीम कलाबाजी खाई और तिरछा होकर एक दायरा बनाता मेरे गिर्द अगिर्द घूम गया। इसकी गन्स का रुख जमीन की तरफ था। ऑटोमेटिक ब्रेन गन्नों से निकलने वाली गोलियों की बौछार ने हमलावरों में से 3-4 को पहले ही हमले में शिकार कर लिया। पायलट की महारत और फरकाराना अंदाज में फायरिंग ने मुझसे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। बेख्तियार इसके लिए मेरे मुंह से नारे तहसीन बुलंद हुआ। दूसरे चक्कर पर उसने दायरे का दरमियानी फासला कुछ और बढ़ा दिया और 3-4 और गुंडे ढेर हो गए। इस हमले ने तो उनकी कमर बिल्कुल तोड़ कर रख दी, और वो मुंतशिर भेड़ियों की तरह जो अचानक शेर की धाड़ सुनकर खौफजदा हो जाएं, एक ही सिमत में मुंह उठाकर भागने लगे। इन भागते खूनख्वार भेड़ियों को मेरे मसीहा ने यूं ही नहीं छोड़ दिया था। उनके पहलुओं से झांकती ब्रेन गन्नों ने हक्के नमक खूब खूब अदा किया। कई भागते दरिंदे चीखते चिल्लाते उनकी भेंट चढ़ गए।
फातिहाना मराजत पर पायलट खासा नीचे आ गया। मैं भी अब बेधड़क उठ खड़ा हुआ और स्टेन गन लहरा कर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगा। उसने मेरे नज़दीक पहुंचकर चाहा कि रस्सी फेंक कर मुझे ऊपर उठा ले, लेकिन मैंने इनकार कर दिया जब तक अपने साथी की लाश मैं न देख लेता। मेरे लिए उसे अकेले छोड़कर जाना नामुमकिन था। हेलीकॉप्टर ने दूरों नज़दीक का चक्कर लगाकर सूरत हाल का जायजा लिया और जब उसे यकीन आ गया कि अब मामला ठीक है तो अपनी मंजिल की सिमत चल दिया। दूसरी वजह शायद ये भी थी कि उसने मेरी मदद को आते कानवाए को भी देख लिया था। मुझे वो नौजवान पायलट कभी न मिल सका। उससे मिलने की शदीद ख्वाहिश का अलमिया उसकी शहादत की खबर सुनकर इख्तिताम को पहुंचा, क्योंकि अगले 7-8 रोज़ वो एक इंतहाई अहम मिशन अंजाम देते हुए अपनी मुराद को पहुंचा। एक हसरत सी आज तक दिल में अंगड़ाइयाँ ले रही थी कि काश मैं अपने मोहसिन का शुक्रिया ही अदा कर सकता। थोड़ी ही देर बाद वो आ गए। जवानों से मुसल्ले 2 ट्रक हमारी मदद को आ गए थे। उन्होंने चंद मिनट बाद ही हमारे आखिरी शहीद का जस्द खाकी भी ढूंढ निकाला। वो सब मर्तबा शहादत पर सरफराज हो गए थे और मैं फिर बच निकला था। इन हालात में मरने वालों पर रश्काया करता था। हमने दुखी दिल से उनकी लाशें उठाई और गमज़दा हेडक्वार्टर की तरफ चल दिए। शहीदों की कंपनी के जवानों को पहले ही से उनकी शहादत की खबर हो गई थी। वो फालिन होकर अपने जानिसारों के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने खड़े थे। बड़े इंदोहनाक मनाजिर होते हैं ये। यूँ महसूस होता है जैसे अपने वजूद का कोई हिस्सा कटकर अलग हो गया हो। सच्ची बात है कि मैं खुद को निढाल और शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था। ये कितने शर्म की बात थी कि मेरे प्यारे मेरे सामने मर गए और मैं जिंदा रहा। और उन लम्हात ने जब शहीदों की लाशें एक कतार में रखी गईं, मुझे फिर रुला दिया। मेरा ही नहीं, तमाम जवानों का यही हाल था। हम सब खौफजदा थे, सोगवार थे, खुद को बिखरा बिखरा महसूस कर रहे थे। हमारे ज़हनों में बार बार एक ही सुलगता हुआ सवाल सर उठा रहा था, आखिर ये क्रोध की चढ़ी आंधी कब उतरेगी? कब वो दौर आएगा जब हम खुद से कट जाने वालों को यकीन दिला सकेंगे कि वो हमारा ही हिस्सा हैं? ये लोग, ये हमारे लोग हमारी जान के दुश्मन क्यों हो रहे हैं? बमुश्किल 2% लोग उन वरगलाए हुओं में से एक थे जिन्हें संग्राम के मायने आते थे। ये कौन सी आज़ादी मांग रहे थे? किससे रिहाई उनका मकसद था? उन्हें किसने अपना गुलाम बना रखा था? हम तो उनके लिए मिटे जा रहे थे। हम तो हज़ारों मील से उनकी मदद को आए थे। हम तो उन्हें हर आफत से बचाना चाहते थे, आंधियों से, तूफानों से, बाढ़ से, और सबसे बढ़कर ये कि अपने मुश्तरक वतन से हमारी तो शदीद ख्वाहिश होती थी कि हमारी जानें किसी भी तौर उनके काम आ सकें। हम उनकी खिदमत को सादत जानते थे। हम तो हर लम्हा, हर दम, हर घड़ी उनके लिए किसी भी मदद के लिए दरकार थे। फिर ये लोग आखिर हमारे खून के प्यासे क्यों हो रहे थे? हमें देखते ही इनकी आंखों में नफरत क्यों जाग उठती थी? क्यों? आखिर ये सब कुछ क्या था? सोचते सोचते हमारे जहन चटकने लगे। हम सीधे सादे फौजी थे, सियासत की हेरा फेरियां हमारे इल्म में कहाँ। हम तो बस एक हुक्म पर मरना मारना जानते थे। हमें कभी यह खबर थी कि हमारे मौत का सामान तो हज़ारों मील के फासले पर एयर कंडीशन ड्राइंग रूम्स में बंद सियासतदानों ने पहले ही से कर रखा था। नफरत की जिस फसल को काटने का नागवार फरीजा हम अंजाम देने जा रहे थे, वो किसी विलायती खाद से काश शुदा दिनों में सर निकालने वाली फसल न थी, बल्कि उसकी आबियारी तो सालों से की जा रही थी। ज़हनों पर सूबाई असबियत के हल तो क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद ही चलने शुरू हो गए थे। सूबाई तअस्सुब, लिसानी तअस्सुब, माशी व माशरती तअस्सुब कैसे कैसे जहरीले नाग फनकार रहे थे। भूले भाले सीधे सादे मांझियों के दिलो दिमाग में तुम्हें लूटा जा रहा है, खाया जा रहा है। तुम जो तख्लीकार हो, तुम जो अपने खून पसीने से सुनहरे रेशे को जन्म दे रहे हो, तुम्हारी जान फशानियों का समर तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। कभी नहीं, जब तक कि तुम खुद आगे बढ़कर अपना हक न छीन लो। कैसे कैसे हलाकत आफरीन नजरिए थे जो एक लंबे अरसे से उनकी मासूम जुबान में ठोंसे जा रहे थे। ये जहर अब एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल हो चुका था। वो बदकिस्मत नस्ल जिसकी आँख ही मुतअस्सिब माहौल में खुली, जो असबियत की जहरनाक फिजाओं में पली बढ़ी, जिसके रुएं रुएं में इंतकाम की चिंगारियां सुलगाई गईं, वो हमारे खून की प्यासी क्यों न होती? वो हमारे वजूद यहाँ अपनी धरती पर क्यों कर बर्दाश्त करती? खुदाया क्या अंधेरा मच रहा था। अश्के नदामत से लबरेज आंखें एहसास जिल्लत से पशेमान पेशानियाँ बारगाहे इलाही में झुक झुक जाती, लेकिन सजदे बारियाब न हुए। मुशीते इलाही ने हमसे गोया रुख मोड़ लिया था। शायद इसकी वजह यह हो कि अब हम पर हद नाफिस हो चुकी थी, आमाल रंग ला चुके थे, कातबे तकदीर का कलम अपना फैसला लिख चुका था। फिर किसकी मजाल थी कि उसके लिखे फैसले के सामने दम मार सके। छावनी के कब्रिस्तान ही में शहीदों की तदफीन हुई। तदफीन
تک میں ان کے ساتھ رہا، آخر دم تک ساتھ نبھانا ہماری عادت جو بن چکی تھی۔ رپورٹ داخل کرنے میں 3-4 گھنٹے لگ گئے۔ شام تک فراغت نصیب ہوئی، اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک صاحب یہاں میرے منتظر تھے۔ یہ میرے سر تھے۔ ہیلو بوائے، کیسے ہو؟ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں میری جانب گھونکتے ہوئے کہا۔ فائن سر، اور میں کیا کہتا؟ میرے جذبات ایک عالم کی نظروں سے اوجھل رہ سکتے تھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اپنے سر سے اپنی جذباتی یا ذہنی حالت چھپا لوں۔ انہوں نے چند منٹ ہی میں میرے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی شدت کا اندازہ کر لیا تھا۔ دیکھو ینگ مین، پہلا اصول تو یہ یاد رکھو کہ فوجی سوچا نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں۔ عمل اشارہ ملنے پر برق کی طرح عمل پیرا ہوتے ہیں۔ سوچیں ذہن پر گرفت کر لیں تو آدمی کنوتی ہو کر رہ جاتا ہے۔ مختلف دھارے سمندر کی لہروں کی طرح اس کے ذہن کی کشتی کو مختلف سمتوں میں بہا لے جاتے ہیں، تب بندے کی اپنی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے میرے دوست زیادہ سوچا نہ کرو، جو ہوتا ہے وہ بہرحال ہو کر رہے گا۔ ہمارے بس میں ہونی کو روکنے کے لیے جو کچھ ہے وہ کر گزریں گے۔ تمہارا تعلق ایک نظریاتی ملک کی فوج سے ہے، ہم لوگ اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں، نتائج سے بے پرواہ ہو کر۔ میرے سر بولتے رہے، میں سر جھکا کر سنتا رہا۔ میں ان سے تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضور والا آپ کی طرح میری آدھی عمر میدان کارزار اور چھاونیوں میں نہیں گزری۔ میں تو عام سا پاکستانی محب وطن نوجوان ہوں، جس کی خاندانی روایات اسے فوج تک لے آئیں، اور اس دور میں جو سرد جنگ کے عروج کا دور تھا، اس کی ٹریننگ مکمل ہوتے ہی اسے میدان کارزار کی طرف دھکیل دیا گیا۔ میں شاہین کا وہ بچہ تھا جس کے بالوں پر گھونسلے میں نہیں بلکہ کانٹے دار جھاڑیوں میں اگے تھے، اور جو نمو پاتے ہی میدان عمل کو کود گیا تھا۔ بدقسمتی سے میں کبھی مکمل فوجی نہ بن سکا۔ میں بھی عام انسانوں کی طرح سوچتا تھا، میرا دل بھی دکھ پر کٹتا، سکھ پر خوش ہوتا تھا۔ حالات مجھ پر بھی اسی طرح اثر انداز ہوتے تھے جیسے ایک عام پاکستانی پر۔ وقت نے، حالات نے اور سب نے بڑھ کر یہ کہ تربیت مجھے پتھر کی طرح چٹان ضرور بنا دیا تھا، لیکن ایسی چٹان جس پر موسموں کی سختیاں بہر طور اثر انداز نہیں ہوتی تھیں۔ حالات کی تند لہروں نے اس پر کائی سی جما دی تھی۔ یہ بڑا انتہاک ثانیہ تھا، لیکن اس سے فرار کی راہ نصیب نہیں تھی۔ جس لمحے میرے سر مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ ان کے دل و دماغ کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ ان کے الفاظ ان کے جذبات کی عکاسی ہرگز نہیں کر رہے تھے۔ ان کی حیثیت اس باپ کی سی تھی جو اپنے جوان بچے کی موت پر اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین کر رہا ہو، جس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا ہو۔ ہم کافی دیر تک ایک دوسرے کو پرسہ دیتے رہے، پھر میس میں چائے پینے چلے گئے۔ شام کو میری کمپنی سے پیغام آ گیا، مجھے ڈھاکہ جانا تھا۔ ایک ڈکوٹا ہوائی جہاز ہوائی اڈے پر ہمارا منتظر تھا۔ میں اور میری کمپنی کے 2 اور جوان جو خصوصی خدمات انجام دینے یہاں آئے ہوئے تھے، اس میں سوار ہو کر رات کی تاریکی میں ڈھاکہ کی طرف پرواز کر گئے۔ ایئرپورٹ پر میرے کرنل صاحب ہمارے استقبال کو موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں بے اختیار باری باری سینے سے لگا لیا۔ یہ دونوں جوان بھی کسی خصوصی مشن سے واپس لوٹے تھے۔ حفاظتی اقدامات اور خصوصی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی خدمات سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ جانے والے ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں کہ مبادہ ان کے منہ سے نکلنے والی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات دوسرے کے لیے باعث مصیبت نہ بن جائے۔ کرنل صاحب کی معیت میں ہم ایک جیپ میں سوار ہو کر کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیپ کی حفاظت کے لیے ایک ٹرک آگے اور ایک پیچھے جا رہا تھا۔ اس کے باوجود اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ ہمارا سفر محفوظ رہے گا۔ میس کے دروازے پر ہمارا استقبال دوسرے ساتھیوں نے کیا جو بے چینی سے ہماری آمد کے منتظر تھے۔ حسب توقع ان میں سے کچھ چہرے غائب تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں منصب شہادت پر سرفرازی نصیب ہو چکی تھی۔ وہ ہنستے کھیلتے رخصت ہوئے اور شہر خموشاں کے مکین بن کر اب اس چھاونی کی حدود میں میٹھی نیند سو رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم ان کی لحد پر پہنچے۔ فاتحہ کو ہاتھ اٹھے تو ان کے سونے سجیلے چہرے آنکھوں میں ہلکورے لینے لگے۔ آنکھیں بے اختیار ان کے حضور آنسوں کا نذرانہ پیش کرنے لگیں۔ کمرے میں پہنچا تو خطوط کا ایک بلندہ میرا منتظر تھا۔ یہ ماں کے خطوط تھے، والد کے خطوط تھے، اپنے پیاروں کے خطوط تھے۔ انہیں مغربی پاکستان میں اخبارات کے ذریعے عجیب عجیب پریشان کن خبریں پڑھنے کو ملی تھیں۔ وہ سب پریشان تھے، سب دعا گو تھے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی بھوک پیاس اڑ گئی ہے، وہ سوتے جاگتے اپنی سونار دھرتی کے سپنے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے التجائیں کی تھی کہ میں ان کی لاج رکھوں، دشمن کو کچل کر رکھ دوں۔ وہ چاہتے تھے کہ ملک کی سالمیت کے خلاف اٹھنے والے ہاتھوں کو کاٹ کر پھینک دوں، میلی نظروں سے دیکھنے والی آنکھیں حلقوں سے نکال کر باہر پھینکوں۔ کتنے بھولے لوگ تھے یہ، کتنے معصوم لوگ تھے۔ اف میرے خدا، میں انہیں کیا لکھتا؟ تسلیوں کے پاہے ان کی روحوں کے گرد گھاؤں پر کب تک رکھتا؟ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے اس منافقت کو جہنم واصل کر کے صاف صاف ان سے کہہ دوں کہ جو کچھ تم سن رہے ہو، جان رہے ہو، وہ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں جو یہاں رونما ہو رہا ہے۔
लेकिन मैं ये सब कुछ कभी ना लिख पाता। हम अपने प्यारों को तसलियां ही देते रहे और वो लुट गए। मुस्तकबिल के मुर्रख का कलम जब हमारे किरदार के उस पहलू पर उठेगा तो खुदा जाने वो हमारे इस फेल को अच्छाई से तशबीह देगा या बुराई से। यकीनन इसके लिए बड़ा तकलीफदेह होगा। वो रात करवटों की नजर हो गई। सुबह उठकर मैंने जीप निकाली और दरे महबूब का रुख किया। चाचा और चाची भी आ गए। उन्होंने मुझे देखते ही सब कुछ भूल भुला कर बेख्तियार मुझे सीने से बारी बारी चिमटा कर मेरी बलाएं ली। मेरी अचानक आमद ने दोनों बूढ़ों के मुरझाए हुए चेहरे खिला दिए थे। क्या हाल है यूसुफ भाई का, मैंने छुटते ही दरियाफ्त किया। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शायद मेरे सवाल ने उन्हें वापस मरती मारती दुनिया में धकेल दिया था। बेटा दुआ करो अल्लाह इसे सेहत दे दे। इनके गोल मोल जवाब ने मेरे अंदेशों को सच साबित कर दिया था। उस लम्हे मेरे जी में तो यही आई कि अभी यूसुफ के यहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन अब वाकई मैं खुद में मरते हुए इंसान का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। हांसा की गुफ्तगू ने मुझे कुछ ज्यादा ही हसास कर दिया था। मैंने खामोशी से गर्दन झुका ली और क्या करता। दोनों बूढ़े मुझसे हस्बे साबिक मुल्की हालात पर तबसरा करने के ख्वाहां थे। वो मुझसे ज्यादा बाखबर थे लेकिन मुझसे ज्यादा खुशफहम भी थे। असल में इंसानों का अलमिया ये था कि वो सब कुछ जानते बूझते हुए भी पुरुमीद रहना चाहता है। हम सब की हालत सजाए मौत के इस कैदी जैसी थी जिसने अपने ब्लैक वारंट पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन जो तख्तादार की तरफ जाते हुए भी पुरुमीद था कि अभी शायद कोई मौजज़ा रोनुमा होकर इसे मौत के मुंह में जाने से बचा ले। आंसा थोड़ी देर बाद अंदर आ गई। इसकी आंखों में जबत के गुलाबी दौड़े दौड़ रहे थे। उनका फसूल चेहरा दो चंद हो गया था, लेकिन मैं इससे आंखें चार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर वहां बैठे बैठे मैंने एक फैसला कर लिया, आंसा की बात मानने का फैसला। मुझे एहसास था वो जो कुछ मांग रही है उसमें वो हक बजानिब है। ऐसे गैर यकीनी हालात में अगर मैंने एक भी कदम आगे बढ़ाकर उन लोगों को सहारा न दिया तो उनके घराने का तारपोत बिखर जाएगा। मैं उन लोगों से न मिलता तो दूसरी बात थी। अब मैंने उनसे राब्ता इस हद तक बढ़ा लिया था जहाँ एक दूसरे पर एतमाद करना पड़ता है और इस एतमाद को ठेस नहीं लगनी चाहिए। मैं चलता हूँ चाची, मैंने बिलाखिर उठते हुए उनसे कहा। आंसा मुझे हस्बे आदत दरवाजे तक छोड़ने आई थी। दोनों बूढ़े अंदर ही रह गए। दरवाजे के करीब पहुंचकर हम दोनों रुक गए। जमीन ने मेरे ही नहीं उसके पांव भी पकड़ लिए थे। शायद वो भी मुझसे कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन इस मर्तबा मैंने उसे पहल न करने दी और बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। आंसा, मैंने इसके लरसते हाथ की पुश्त को सहलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम जब भी कहो मैं उसी लम्हे निकाह कर लूंगा। मुझे मेरी बात अधूरी ही रह गई। आंसा ने अपनी सरमुगी आंखें ऊपर उठाईं। इस लम्हे वो हुस्ने वकार की देवी नजर आ रही थी। अली, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। आप पर पहला हक इस मुल्क का है जिसकी हम सब बेटियां बेटे हैं। मुझे अब एहसास होने लगा है कि शायद जिंदगी के किसी लम्हे मैंने कोई अच्छा काम किया था, वरना आप जैसे अजीम इंसान से मेरा मुकद्दर वाबस्ता न होता। आप मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे, और आपकी आंसा आपका इंतजार करेगी उस वक्त तक जब तक आप इस मुल्क को दुश्मन के नापाक वजूद से पाक नहीं कर देते, जब तक हमारे खेतों की हरियाली लौट नहीं आती, जब तक हमारे पटसन का सोना फिर से जगमगाने नहीं लगता। मुझे उसकी कुछ परवाह नहीं, ये इंतजार कितना लंबा होगा। उसका एक एक लफ्ज निश्तर बनकर मेरे सीने में उतरने लगा। हुस्नो वफा की देवी उस लम्हे मुझे बहुत अजीम दिखाई दे रही थी, मेरी सोच से भी ज्यादा कदावर, किसी दूसरी दुनिया की मखलूक। खुदा जाने वो कौन से जज्बात थे जो मुझ पर गालिब आ गए थे। आंसा, मेरे मुंह से बस एक ही लफ्ज ही निकल पाया। हम दोनों ही उस लम्हे दोनों जहानों में खो गए थे, लेकिन नहीं, आंसा के हवास बजा थे। उसने मेरी जज्बाती कैफियत का बखूबी अंदाजा लगा लिया था। मुझे आहिस्तगी से इसने खुद से अलहदा कर दिया और बढ़कर दरवाजा खोला। मैंने उसकी तरफ देखा और देखता ही रह गया। आंसुओं से भीगी वो मुस्कुराहट। खुदा की पनाह, मैं अब कब उसे बुला पाऊंगा। इस मंजर की मजीद ताब लाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैंने खुदा हाफिज कहा और तेजी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते हुए मैंने पलट कर भी उसकी सिमत नहीं देखा। मुझे यूं लगा जैसे उस सिमत देखने पर मैं पत्थर का एक बुत होकर रह जाऊंगा। अब तक सूरत हाल ये थी कि तकरीबकार अमूमन घिसे पिटे तरीके ही इस्तेमाल कर रहे थे। ज्यादातर वो दो तरह से अपना काम करते थे, गोभी ट्रेप और सेफ्टी ट्रेप के जरिए। इन दोनों तरकीबों का हल हमने ढूंढ निकाला था। वो इस तरह है कि हम लोग फौजी करवाए के आगे खाली छकड़ा बांध देते या रेलगाड़ी के आगे।
तबाहकुन धमाका खेज मवाद को किसी भी शय से इस तरह बांधा जाता है कि जरा सी जुम्बश पर ही उसके पर खच्चे उड़ जाते हैं या धमाका खेज मवाद खासा जानलेवा साबित होता है। इस तरकीब में तकरीबकार कुछ दूर बैठकर तबाहकुन धमाका कर सकते हैं। इंजन के आगे कुछ खाली डब्बे बांध देते। इस तरह इंसानी जानों का ज़िया बहुत कम होता है और अमूमन दुश्मन का छुपाया हुआ धमाका खेज मवाद गैर मौसर साबित होता है। लेकिन जब इस बात का इल्म मुक्ति बाहिनी के करता धरता रॉ के आला अफसरान को हुआ तो वो सर पीट कर रह गए। बड़े बड़े भारतीय और गैर भारतीय दिमाग मिलकर बैठे और उन्होंने बिलाखिर इसका भी हल ढूंढ निकाला। तकरीबकारों के पास धड़ाधड़ दूर से कंट्रोल किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल और बिजली से चलने वाले धमाका खेज बम पहुंचाना शुरू कर दिए। इन खतरनाक बमों की मदद से वो चलती ट्रेन को भी हस्बे मंशा भग से उड़ा सकते थे। इसके बाद वो मजीद एडवांस हुए तो उन्होंने डायनमो से भी निजात हासिल कर ली और इसकी जगह ड्राई बैटरी सेल ने ले ली, जो लोग बासानी एक आम सी टॉर्च में छुपा कर एक से दूसरी जगह ले जा सकते थे। मशरक़ी पाकिस्तान नदी नालों, दरियाओं और समंदर का देश है। दुश्मन जमीन से ज्यादा पानी से खतरनाक साबित होता है। वो लोग इन्हीं पानियों के कीड़े थे, यही वो पले बड़े और जवान हुए थे। अपने इलाके के चप्पे चप्पे पर बहते पानियों से उनकी पुरानी शनासाई थी, जबकि हमारी दोस्ती उनसे हाल ही में हुई थी। हम एक से दूसरी नदी तक पहुंचने के लिए भी नक्शों की मदद के मोहताज थे। ज्यादातर अफवाज के जवान मगरिबी पाकिस्तान से यहाँ आए थे, जिनकी मालूमात इस इलाके के मुतालिक सिफर थी। मकामी आबादी पर किसी भी किस्म का एतमाद खुद को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ था। हम इस सिलसिले में काफ़ी नुकसान उठाने के बाद अब खासे मोहतात हो गए थे। अमूमन यही होता है कि आबी रास्ते पर चलती हमारी जवानों की बोट रुक जाती तो खुद ब खुद कोई बंगाली वहाँ आ जाता। वो हमें अपनी रजाकाराना खिदमात बड़ी बड़ी कस्में उठाने के बाद पेश करता। जवान बहरहाल मुसलमानों की औलाद थे। जब उनका एक मुसलमान भाई उन्हें बड़ी बड़ी कस्में उठाकर अपनी वफादारी का यकीन दिला रहा हो तो वहाँ इनकार की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। वो इसकी बात पर अमल करते और इसके बताए हुए रास्ते पर चल देते। जहाँ घात में लगे तकरीबकार उन्हें निशाने की जद में आते ही उड़ा कर राख कर देते। बहुत कम खुश नसीब ऐसे होते जो इनकी बात पर अमल पैरा होने के बाद बच निकलने में कामयाब होते। बिहारी रजाकार हमारे बेहतरीन दोस्त थे, लेकिन वो इतने कलील तादाद में थे कि हर जगह हम उन्हें बतौर गाइड अपने साथ रखने से लाचार थे। यूँ भी इनके जिम्मे बहुत से फराइज थे। वो न सिर्फ ये कि पेट्रोल पार्टियों के हमरा गश्त पर जाते, बल्कि अंदरूनी अमन व अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी काफ़ी हद तक इनके कंधों पर ही थी। पहले पहल तकरीबकार बारूदी सुरंग किसी साकिन जहाज या कश्ती से बांध देते, जो मुकर्ररा वक्त पर यह हरकत करने से फटकर उसे तबाह कर देती। इसके बाद वो लंपेट माइन इस्तेमाल करने लगे। ये ऐसी माइन्स यानी सुरंगें होती थीं जिनके मुंह पर मकनातीस लगा होता और वो खुद ब खुद अपने टारगेट से चिमट कर मुकर्ररा वक्त पर फट जाती। मजीद हौसले बढ़े तो भारतीय नेवल फोर्सेस के तरबियत याफ्ता फ्रॉगमैन यानी गोताखोर ज़ेरे आब तैरते हुए आने लगे। ये लोग बड़ी आहिस्तगी से जहाज या कश्ती में तबाहकुन सुरंग चिपका कर वापस लौट जाते हैं। इस खसूसी मकसद के लिए इंडियन नेवी ने 400 खसूसी गोताखोरों का एक दस्ता तैयार किया था। ये लोग ज्यादा अरसा ज़ेरे आब रहने के लिए अमूमन निटर पास या बांस की पतली नाली सतह आब पर रखते, जिससे सांस लेने में सहूलत रहती। बस औकात ये भी देखने में आता है कि वो केले या बांस के तने के साथ लिम्पेट माइन बांध कर इसे पानी के बहाव के रुख बहा देते, जो अपनी मकनातीसी कुव्वत की बिना पर खुद ब खुद टारगेट से चिपक कर उसे तबाह कर देती। मैंने हेडक्वार्टर पहुंचते ही सबसे पहले अपने वालिद को खत लिखा। आंसा और इसके घर वालों के मुकम्मल हालात से आगाह करने के बाद इनसे इजाज़त तलब की कि वो मुझे पूर्व पाकिस्तान की बेटी को अपनाने की इजाज़त दें। मुमकिन है हमारा संजोग पूर्व पश्चिम के बिछड़े हुए रिश्तेदारों को एक लड़ी में परोने की तमहीद बन जाए। और खत लिफाफे में बंद करके अभी मैंने चाय की प्याली होंठों से लगाई ही थी कि करीब रखे टेलीफोन की घंटी बजने लगी। आम हालात में यह घंटी खुशखबरी की नवीद हिलाया करती थी। अमूमन अपने अजीज़ों अकरबा और प्यारे इस पर हमसे मुखातिब हुआ करते, लेकिन उन दिनों फ़ोन उठाने से पहले हमारे मुंह से फ़ौरन इलाही खैर निकला करता था। मैंने भी बेचैनी से रिसीवर उठाया। फ़ौरन कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचो, इमरजेंसी पैगाम मिला। मैंने चाय की प्याली जूं की तूं वहीं रखी, टोपी सर पर जमाई, मेज पर रखा रिवॉल्वर लोड करके होलिस्टर में डाला
और करीबन भागता हुआ कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंचा था, जहां मेरी तरह दूसरी जवान भी इस तरह भागे चले आ रहे थे। मेरे पहुंचने के 2 मिनट बाद ही हमारे ओसी साहब भी एक तेज रफ्तार जीप से बरामद हुए और हमारे सैल्यूट का जवाब देते कॉन्फ्रेंस रूम में जा घुसे। हम इनके ताकुब में तेज रफ्तारी से अंदर दाखिल हुए और फुर्ती से अपनी कुर्सियां संभाल कर बैठ गए। हाजिरी मुकम्मल होते ही कर्नल साहब के एडजॉइंट ने सामने लगे बड़े से नक्शे पर से पर्दा हटा दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।